and 1 minute already gone. इंशाल्लाह 4:12 पे मैं स्टार्ट करता हूँ. जी, those of you who are listening to me, is this the first time you are studying online और यहाँ आप already आदी हो चुके हैं online learning के? Anybody who would like to answer me, chat box में आप type कर सकते हैं. Okay, see, this is your first time. Ahad, first time. Okay. So most of the students, उनका ये first time है online studying. तो चले, एटलीस्ट मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं पिछले 5 सालों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ. और आज इसीलिए मैंने अपनी इस ओरिएंटेशन में कुछ ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से भी एक ओरिएंटेशन की स्लाइड्स रखी हुई है. Okay, I guess we should start. So this is me, Dr. Zishan Mahmood, teaching you strategic management accounting. So in this session, I will be introducing myself in some detail, and I will be introducing the subject in terms of the syllabus, in terms of the exam structure, in terms of the types of exams, in terms of the resources. So बहुत एक शुरू में इंशाल्लाह हम एक अच्छा introduction करेंगे और we will try to understand और at least हमारी एक orientation हो जाए SMA के हवाले से and how we gonna prepare that subject. I will be going through some of these slides I have prepared for online learning. कुछ आपसे बातें शेयर करनी है ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से. कोर्स कंटेंट्स पे भी बात करेंगे. We'll go through some of the areas, part A, part B, part C, syllabus क्या है, और फिर गूगल क्लासरूम और कुछ एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर और फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आपको भी हम अलाउ करेंगे. अभी सुफियान अली इज रेजिंग हैंड. सुफियान, whatever question you're having, you can type in the chat box. और प्रोटोकॉल ये है कि आपको एट रेगुलर इंटरवल्स क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा, बट you will be asking questions by typing in your question and I will be responding your questions live by speaking. Okay, you cannot talk directly to me. However, you can write whatever is in your mind. और वो भी हर वक्त नहीं, जब आपको मौका दिया जाए. अभी अगर कोई क्विक क्वेश्चन आपका है तो बिकॉज मैं अभी स्टार्ट करने लगा हूँ तो आप पूछ सकते हैं, और अगर गलती से हैंड रेज हुआ है तो उसको लोअर कर लें. Asib, if you have created WhatsApp group for SMA, yes, you can WhatsApp group for SMA as well, and I will be happy to join that group. पिछले sessions के groups बने हुए हैं मेरे पास, उसमें हम बड़ा lively participate करते हैं. So I have no problem creating another group. तो आप create कर लें और मुझे उसमें आप add कर लें. मैं अभी number आपसे share कर लेता हूँ. Okay, so let's have some इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ. बड़ा क्विकली मैं चलूँगा, बहुत टाइम है हमारे पास एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए. बट एनीवेज, दिस इज मी, डॉक्टर ज़िशान महमूद. आई हैव डन PhD इन अकाउंटिंग फ्रॉम SS विजन स्कूल UK. वहीं से मैंने मास्टर्स ऑफ रिसर्च किया अकाउंटिंग में. I spent 5 years in UK from 2010 to 2015. I went there as on scholarship as part of faculty development program, come back and joined my sponsor university, which is Bahauddin Zikri University, Multan. वहीं से मैंने मास्टर्स किया था accounting and finance में. And apart from that academic qualifications, I do have a number of professional qualifications. I'm associate member of Chartered Institute of Management Accountants. I'm associate member of Pakistan Institute of Public Finance Accountants. I'm associate member of British Accounting and Finance Association.
and I'm associate fellow member of Higher Education Academy UK. There are a couple of more qualifications which even I don't write here. वो अब आपको पता है कि हर चीज़ नहीं लिखी जाती. Teaching affiliations. I have around 20 years of teaching experience locally, nationally, internationally. So mainly I'm serving as a professor in Bahauddin Zikri University, Multan. That's where I started learning. That's where I graduated. That's where I did my permanent job, and that's where I'm still teaching. And uh, while I was in UK, I taught for 5 years in Essex Business School, where I did my PhD. I taught in University of Suffolk. I taught in London College of Business Management and IT. Or ICMP say, obviously I am associated from last so many years. And I'm also associate lecturer online in Professional Academy of Commerce. And I taught in Beacon House Business School and College of Advanced Accountancy. So this is my brief introduction. अभी बिलाल भी hand raise कर रहे हैं. बिलाल, if you have any question, you can write in the chat box में. आज चूँकि हमारी पहली क्लास है तो थोड़ी बहुत आपको साथ साथ मुझे orientations देनी है. तो उसमें से एक orientation ये भी है कि instead of raising hand, what you can do is you can type in your question. तो मैं chat box पढ़ता रहता हूँ and I'm quite active in रीडिंग द चैट बॉक्स, और उस पे जो आपका सवाल होगा वो उसको मैं जवाब देता रहूँगा. सो आफ्टर दिस मैं अब यहाँ से थोड़ा सा आपके सब्जेक्ट पे जाना चाह रहा हूँ. सो एज फार एज SMA is concerned, obviously this is the next level subject for management accounting. Most of you might have already passed management accounting. कुछ लोगों ने पास कर लिया होगा और कुछ लोगों ने शायद पास करना होगा. And you know what is in management accounting. Management accounting is all about providing information to the management for planning, controlling, and decision making. So you can say that this subject of strategic management accounting is the advanced version of management accounting. So you can also call it advanced management accounting. कुछ courses में, कुछ programs में, कुछ qualifications में इसी course को हम advanced management accounting भी कहते हैं. Now definitely when it comes to advanced, then why some subject is advanced? जाहिर सी बात है, आप किसी भी subject में शुरू में कुछ basics पढ़ते हैं, basic knowledge acquire करते हैं, basic tools understand करते हैं, basic principles सीखते हैं, और वो basic principles और basic tools बहुत पुराने होते हैं. And with the passage of time उस subject में advancement आती है, जदीद modern environment की वजह से, जदीद हालात की वजह से, conceptual changes भी आते हैं, thoughts change हो जाती हैं. So किसी भी discipline में फिर advanced tools, चाहे वो engineering हो, doctory हो, accounting हो, management accounting हो, तो advanced tools over the period of time develop हो रहे होते हैं. So first of all, strategic management accounting is, मैं आज किसी definition पे बात नहीं करना चाह रहा, right? Go के मेरे पास इस वक्त slides में कुछ definitions भी हैं, but setting that all aside, हम सिर्फ आज एक overall जो strategic management accounting का scope है और जो डेप्थ और ब्रेड्थ है उसके सिलेबस की, उस पर बात करना चाह रहे हैं, और विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकल डिटेल्स अबाउट द डेफिनेशनल स्टफ. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ तो आप एडवांस टूल्स पढ़ रहे होंगे. मिसाल के तौर पर अब जिस तरह अभी आपको ये जो पार्ट ए नज़र आ रहा है, सो बेसिकली योर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. पार्ट ए आपका 25% वेटेज का है, पार्ट बी 40% वेटेज का है, और पार्ट सी जो है वो फिर आपका 35% वेटेज का है. सो इन पार्ट ए it's all about cost planning, cost analysis, cost management, and externally oriented cost management techniques. अब इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं? इसमें आप डेफिनेटली जिस तरह मैंने अभी आपको कहा, आप इसके अंदर जो एडवांस कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं, बेसिक आप पढ़ के आ जाते हैं. मार्जिनल कॉस्टिंग आपको आती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपको आती है, इवन आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी आती है फ्रॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग. बट we will go further, 1 step ahead, 2 step ahead. हम उससे आगे चलेंगे, हम एडवांस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देखेंगे, हम टारगेट कॉस्टिंग
देखेंगे, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग देखेंगे, थ्रूपुट अकाउंटिंग देखेंगे, जस्ट इन टाइम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, and all these recent latest modern contemporary management accounting tools and techniques वो हमने section में cover करने हैं. This whole section is all about modern tools and techniques used in management accounting. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ अलबत्ता मैं आपको बताता चलूँ ताकि आप का ये जो स्ट्रेटेजिक का वर्ड है ये आपके दिमाग में अभी चला जाए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ. तो स्ट्रेटेजिक, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो स्ट्रेटजी का वर्ड तो आर्मी से निकला हुआ है, और आर्मी में स्ट्रेटजी किसको कहते हैं कि आप अपने ट्रूप्स को और अपने जो आर्मी इक्विपमेंट है और जो ट्रूप्स हैं उसको इस तरीके से प्लेस करते हो, इस तरीके से डिप्लॉय करते हो कि आप दुश्मन को अपने टाइम और अपनी प्लेस पे लाकर उससे जंग लड़ते हो. सो वहाँ पे जो स्ट्रेटजी बन रही होती है, और जहाँ से स्ट्रेटजी का वर्ड आया आर्मी से, तो वहाँ पे जो स्ट्रेटजी बन रही होती है दैट इज ऑलवेज कंसिडरिंग द दुश्मन. ठीक है, आप अपने जो जो एनिमी है उसको देखते हुए वो स्ट्रेटजी बना रहे होते हो. तो ये मैंने यहाँ पे इस स्लाइड्स में आपसे शेयर भी कर लूँगा. मैं डेफिनेटली आज इसमें पढ़ना नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल मैंने स्लाइड्स में ये चीज़ 2-3 स्लाइड्स में डाली है कि स्ट्रैटेजी का वर्ड्स कहाँ से बोरो किया गया है और स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है. द आर्ट ऑफ मूविंग और डिस्पोजिंग ट्रूप्स और शिप्स or aircraft so as to impose upon the enemy the place and time and conditions for fighting preferred by oneself. आप अपने दुश्मन पे वो टाइम और वो प्लेस और वो कंडीशन मुसल्लत करते हैं जो आप प्रेफर करते हैं. अगर आपने दुश्मन को दुश्मन के इलाके में जाके मारना है तो आप वो वाली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं. अगर आपने दुश्मन को अपने इलाके में आने देना है और फिर मारना है तो आप वो वाली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं. तो स्ट्रैटेजी इज बेसिकली a word used in army, using your tools in a way कि आप जो अपना एनिमी है, और ये चेंज होती रहती है. आपका एनिमी की स्ट्रैटेजी के हिसाब से फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते रहते हो. तो यहाँ से जो बिजनेस स्ट्रैटेजी का जो वर्ड है, और वो आप बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा. आप बहुत डिटेल में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे आप बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होती है और विजन, मिशन और स्ट्रैटेजी की जो टाइप्स हैं वो सारा कुछ आपने वहाँ पे पढ़ना है. तो यूजिंग द सेम एनोलॉजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी में आप क्या कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म प्लान्स बना रहे हो, आप अपने कोर्स ऑफ एक्शंस डिसाइड कर रहे हो. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ वो ये है कि आप जब बिजनेस स्ट्रैटेजी बना रहे होते तो वो आइसोलेटेड वे में नहीं बनाते. स्ट्रैटेजी कभी भी आइसोलेटेड वे में नहीं बनती. स्ट्रैटेजी कभी भी इंटरनल थिंकिंग से नहीं बनती. फॉर स्ट्रैटेजी यू हैव टू थिंक अब एक्सटर्नली. आपको कंपैरेटर्स के बारे में सोचना पड़ेगा. तो ऊपर जो हमने एनिमी की बात की थी, तो यहाँ पे एनिमी का वर्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटर्स का वर्ड है. तो फिलहाल आप अपने जहन में ये बात बिठा लो कि जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे होगे तो यहाँ पे आपका जो एम्फेसिस होगा, ये जो हम कॉस्ट प्लानिंग, कॉस्ट एनालिसिस और कॉस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जो एम्फेसिस होगा वो कस्टमर्स के ऊपर और कंपैरेटर्स के ऊपर और कुछ एक्सटर्नल पार्टीज के ऊपर होगा. यानी कि आप कॉस्टिंग ऐसे नहीं कर रहे कि आपने कस्टमर से पूछा, कस्टमर को जाने बगैर कॉस्टिंग कर ली. जो हम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, उस ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम जो कॉस्टिंग कर रहे होते हैं वो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स की बेस पे, इतना मटेरियल लगा, इतनी लेबर लगी, इतनी ओवरहेड्स लगी, ये हमारी कॉस्ट है. हम ये देखते ही नहीं कि कस्टमर कितना पे करने को तैयार है, कस्टमर की क्या अफोर्डेबिलिटी है, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट लाइक करता है, कौन सा फीचर लाइक करता है, कौन सा लाइक नहीं करता. तो ट्रेडिशनली हम बड़ा कंजर्वेटिव वे में और बड़ा इंटरनल वे में कॉस्ट प्लानिंग और कॉस्टिंग कर रहे होते हैं. यहाँ पे हमने पार्ट ए जब पढ़ रहे होंगे तो आप देखिएगा जितनी भी टेक्निक्स हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, टारगेट कॉस्टिंग है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और बहुत सारी जो यहाँ पे हम टूल्स और टेक्निक्स पढ़ रहे होंगे, उसके अंदर जो ओरिएंटेशन होगी उस कॉस्टिंग की वो आउटवर्ड होगी, टुवर्ड कस्टमर होगी, टुवर्ड्स कंपैरेटर्स होगी, और इनको देखते हुए हम अपनी कॉस्टिंग और प्राइसिंग वगैरह कर रहे होंगे. So part A is all about this. पार्ट बी में एक आपको कुछ ओवरलैपिंग एरिया मिलेगा. इनफैक्ट आपको पार्ट ए में भी ओवरलैपिंग एरिया मिलेगा, क्योंकि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एडवांस पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डेफिनेटली आएगी और बहुत से और कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे.
सो पार्ट बी में जो चीज़ें कवर हो रही हैं एंड दैट इज 40% वेटेज, सबसे ज़्यादा वेटेज इसकी है और सबसे लेंथी पार्ट भी यही है. सो इन पार्ट बी वी आर कंसर्न मेनली विद द डिसीजन मेकिंग, और उस डिसीजन मेकिंग के अंदर रहते हुए अब ये भी ओवरलैपिंग एरिया है. रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ज़रा और आगे जाके पढ़ेंगे और एडवांस पे भी पढ़ेंगे. तो अगेन रेलेवेंट कॉस्टिंग है, मेक और बाय डिसीजंस है, लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस है, सेल और प्रोसेस फर्दर है. लेकिन अब इससे आगे हम जाएंगे और हम इस डिसीजन मेकिंग में रिस्क को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे. ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म डिसीजन है. जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है वो आप ऑलरेडी पढ़ लेते हैं. तो हम रिस्क को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे कि अगर हमारे डिसीजंस में रिस्क इन्वॉल्व होता है और तो हम उस रिस्क को किस तरीके से अकोमोडेट करेंगे और किस तरीके से उस एनवायरनमेंट में हम डिसीजंस लेंगे. फिर इसके अंदर हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग एक टूल आ जाता है जिसमें हम नॉर्मली सिंगल फैक्टर लिमिटिंग एनालिसिस करते हैं. आप इससे पहले जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ के आए होंगे उसमें आपने एक लिमिटिंग फैक्टर का एनालिसिस किया होगा, लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस, जिसमें हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे फैसला करते हैं. तो प्रैक्टिकली तो एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, बाज़ का 2, 3, 4, 5 इकट्ठे लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं. तो अगर एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो तो हमने किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, उसके लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे. ब्रेक इवन एनालिसिस और किसी हद तक मल्टीपल ब्रेक इवन एनालिसिस भी आप पढ़ के आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में. अब ये उससे आगे जाएंगे, हम मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस को फर्दर स्टडी करेंगे और प्राइसिंग डिसीजंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सो दिस पार्ट बी इज बिट ऑफ एन ओवरलैप एरिया जो आपका कनेक्टेड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, और इसमें हमने ज़रा फर्दर नॉलेज जो है वो एक्वायर करना है. और स्पेशली इसके अंदर जो न्यू एरियाज हैं उसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, और बाकी डिसीजन मेकिंग कुछ ओवरलैप है और कुछ जो है वो नया एरिया है. सो दैट इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद योर प्रीवियस सब्जेक्ट. फाइनली जो पार्ट सी है आपके सिलेबस का, विच कैरीज 35% वेटेज. This is mainly about performance management. ठीक है, आपको पता है किसी भी बिजनेस का जो अल्टीमेट गोल है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का मतलब ये है प्रॉफिट इज बेसिकली अल्टीमेट परफॉर्मेंस. और हमने परफॉर्मेंस को मेजर भी करना है, परफॉर्मेंस को मैनेज भी करना है, परफॉर्मेंस को एवेल्युएट भी करना है, परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज भी करना है. तो इस सारे सेक्शन में एक तो हमारा फोकस परफॉर्मेंस एवेल्युएशन और परफॉर्मेंस मेजरमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी होगा, लेकिन साथ ही साथ इसको हम ज़रा डिविजनलाइज स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते होंगे. यानी कि अ कंपनी हैविंग मल्टीपल डिविजन्स, मल्टीपल सेंटर्स, और फिर उसके अंदर एक ट्रांसफर प्राइसिंग का भी इशू होगा. सो पार्ट सी's emphasis is mainly on performance measurement, ROI, ROE, ROCE, net profit margin, gross profit margin, balance scorecard, quality की measures, इसकी measures, उसकी measures, and divisional structure and transfer pricing. ये आपका 3 पार्ट्स बनते हैं और ये आपका सिलेबस बनता है. अभी मैं ज़रा क्विकली चेक कर लूँ किसी का अगर कमेंट आया हो तो मैं अच्छा चले, कमेंट तो जनरली आए हुए. अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर पे लेके जाता हूँ. अब ये पिछले स्लाइड्स थी मेरी पिछले सेशन की, तो ये स्लाइड्स अब इररेलेवेंट हो रही हैं, इसलिए मैं आपको एग्जामिनेशन के हवाले से जो बात अब बताने लगा हूँ और वो आपको पता भी होगी कि अब जो है वो जो एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड है. तो उसके लिए अभी क्विकली हम ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं अपनी पहली क्लास में कि आपका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, तो ये है जी आपका एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है वो अब आपके सामने आपको ये नज़र आ रहा होगा. ठीक है जी, इस पे हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं. तो 2 मेजर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपके 2 मेजर जो हैं वो सेक्शंस हैं कह लें. आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. कितने होंगे जी? 20 से 30 होंगे. राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे. अच्छा, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि थ्योरेटिकल भी होंगे और न्यूमेरिकल भी होंगे.
सो थ्योरेटिकल कौन सा होता है? मिसाल के तौर पे लर्निंग कर्व जो हम आज पढ़ेंगे उसकी लिमिटेशंस क्या हैं? तो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो लर्निंग कर्व की लिमिटेशन, फलाने के एडवांटेजेस, फलाने की इम्प्लीकेशंस, टारगेट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट में कौन सी चीजें वेरिएबल्स आती हैं, इसका फायदा क्या है, दिस एंड दैट। तो बेसिकली लर्निंग कर्व की थ्योरी क्या है? तो बेसिकली बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग उसकी रिक्वायर्ड होती है और आपको थ्योरेटिकली एग्जामिन की जाएंगी। तो यहाँ पे थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है और एसएमए के स्टूडेंट्स और जनरली आईसीएमए के स्टूडेंट्स थ्योरी को बहुत इग्नोर करते हैं और ज्यादा जो फेल हो रहे होते हैं और अभी भी जो फेल हो रहे हैं स्टूडेंट्स वो ज्यादा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से होते हैं। उनको न्यूमेरिकल तो करने आते हैं लेकिन वो उनको पता नहीं होता कि टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं पता होता क्या है। बस सवाल हल कर लेंगे, स्टेप 1 करो, स्टेप 2 करो, स्टेप 3 करो, स्टेप 4 करो, क्वेश्चन हल हो जाएगा। पूछो उनसे कोई बात या कोई एमसीक्यू पूछ लो उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उनको नहीं पता होता। तो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज जब आप देखिएगा कि मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ या आगे भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको स्टडी टेक्स्ट में से उसकी प्रॉपर थ्योरी बताऊंगा, उसके बैकग्राउंड पे जो लॉजिक है वो समझाऊंगा ताकि आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर सकें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 20 से 30 होंगे और वो 2 से 5 नंबर के हो सकते हैं। 2 नंबर के थ्योरेटिकल होंगे 10 से 15 और न्यूमेरिकल एमसीक्यूज आएंगे 3 से 5 नंबर के, यानी कि न्यूमेरिकल एमसीक्यू 3 नंबर का भी हो सकता है, न्यूमेरिकल एमसीक्यू 4 नंबर का भी हो सकता है, न्यूमेरिकल एमसीक्यू 5 नंबर का भी हो सकता है। लेकिन बड़े से बड़ा सवाल जो आपको मिलेगा वो 5 नंबर का होगा, अगर वो एमसीक्यू के फॉर्म में भी है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी है। न्यूमेरिकल एमसीक्यू क्या होता है कि आपको डेटा दिया प्रोडक्ट्स का और आपको कहा कि इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर दो और नीचे 4 ऑप्शन दे दी कि कॉस्ट 100 है, कॉस्ट 50 है, कॉस्ट 200 है, कॉस्ट 250 है। तो न्यूमेरिकल एमसीक्यू, आपको कहा गया कि आरओआई कैलकुलेट कर दो, आपको कहा गया कि इसकी प्राइस कैलकुलेट कर दो, न्यूमेरिकल एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू के 2 टाइप्स हैं यहाँ पे, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल। जनरली न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, थ्योरेटिकल में उनसे परफॉर्म नहीं किया जाता। तो यहाँ पे देखिए वेटेज ऑलमोस्ट बराबर है। उसके बाद अगला जो सेक्शन है, अगला जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं वो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कितने हो सकते हैं? कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 15। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? कम से कम 3 नंबर का होगा और मैक्सिमम 5 नंबर का होगा। अब डिस्क्रिप्टिव सवाल क्या है? डिस्क्रिप्टिव सवाल अगेन थ्योरेटिकल भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव सवाल अगेन न्यूमेरिकल भी हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव सवाल में पूरी पूरी कैलकुलेशन भी आ सकती है और डिस्क्रिप्टिव सवाल में ये भी कहा जा सकता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, मिसाल के तौर पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की इम्प्लीकेशंस क्या हैं उसके बारे में आप बात करो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इम्प्लीकेशंस क्या है उसके बारे में बात करो। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, अच्छा अब यहाँ पे बस थोड़ा सा यूं ही समझ लें कि सेम क्वेश्चन कैन बी डिस्क्रिप्टिव, सेम क्वेश्चन कैन बी एमसीक्यू। फर्क सिर्फ यही होगा कि डिस्क्रिप्टिव के लिए आपके पास एक बॉक्स होगा जिसमें आपने अपनी तरफ से आंसर फीड करने हैं, अपनी तरफ से टेक्स्ट डालना है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बॉक्स नहीं होगा बल्कि एबीसीडी होगा और आपने किसी एक पर टिक करना है। तो सेम क्वेश्चन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द काइंड ऑफ क्वेश्चन or the possible questions which can be asked in an MCQ or which can be asked in a descriptive question। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी वो शक्ल भी दिखा देता हूँ आपके मॉडल पेपर की, और उसके बाद अब मैं आपसे कुछ सवाल लेता हूँ क्योंकि मैंने अब तकरीबन 20 मिनट बोल लिया है, तो आपके जहन में कुछ सवाल आ रहे होंगे। गो कि अभी मैंने फर्दर आपको इस प्रेजेंटेशन में आगे लेके जाना है और बहुत सारे सवालों के आंसर होपफुली आपको खुद ही मिल जाएंगे जो अभी आप पूछना चाह रहे हैं या जो पूछ रहे हैं। अब जिस तरह मैंने अभी जैसे ही चैट बॉक्स का रुख किया है तो कोई बुक्स के बारे में पूछ रहा है, कोई नंबर के बारे में पूछ रहा है, तो ये सारी चीजें अभी मेरी आज के एजेंडे का हिस्सा हैं। बेफिक्र रहें, आज आपको सारी चीजें क्लियर किए बगैर मैंने पहला सेशन खत्म नहीं करना। बेफिक्र रहें, आपको पहले सेशन में क्लियर हो जाएगा कि हम आखिरी सेशन तक कैसे चलेंगे। देयर विल बी नो एम्बिग्यूटी व्हाटसोएवर। अच्छा, दूसरी, हाँ अब मैं आपको ना मॉडल पेपर दिखाना चाह रहा था, तो जरा मॉडल पेपर पे नजर मारिएगा। अब ये आपके पास मॉडल पेपर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, और इसके अंदर आप देखें कि सबसे पहले एमसीक्यू दिया हुआ है। अब एमसीक्यू क्या दिया हुआ है कि जी आप बताएं जी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आइडेंटिफाई द स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एट विच द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स ड्यू टू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब ये जिस स्टूडेंट को लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आता है
और वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट उसको आता है, तो वो वेरी इजीली बता देगा कि ये डिक्लाइन स्टेज है या मार्केट डेवलपमेंट स्टेज है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज है या मैच्योरिटी की स्टेज है। so that person can easily tell। आपने इसमें से एक ऑप्शन जो है वो चूज करना है, वट एवर दैट ऑप्शन इज। आई एम नॉट, मैं कॉन्सेप्चुअली इसको इस वक्त टिक नहीं कर रहा, मैं रैंडमली इसको मैंने टिक कर दिया है। फिर उसके बाद वो कौन सी कॉस्टिंग है जिसका मकसद ये है, अब वो जो भी है आप उसको टिक कर देंगे। so this is the example of multiple choice question। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इतना बड़ा भी है कि जिसके अंदर पूरा न्यूमेरिकल पूछ के आपने कैलकुलेशन करके ऑप्शन बताना है। तो ये ऑलमोस्ट एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल है जो आपसे मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में पूछा गया है। अब इसके बाद डिस्क्रिप्टिव देख लो। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्क्रिप्टिव, एंड इन क्वेश्चन नंबर 4 यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ROI एंड RI। अब ये पूरा एक पार्ट सी का एक न्यूमेरिकल बनता है जो आपसे कैलकुलेट करने को कहा गया है। कितने नंबर का हो सकता है? मैक्सिमम 5 नंबर का हो सकता है। करना क्या है कि इस बॉक्स में आपने अपना आंसर देना है, और आंसर इस तरीके से देना है कि आपने जो एग्जैक्ट चीज पूछी गई है कि ROI बताएं, तो वो आपने एग्जैक्ट इसमें टाइप करना है। RI बताएं, वो आपने एग्जैक्ट इसमें टाइप करना है। और अगर आप वर्किंग टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो आंसर चेक होना है आपका वो होगा जो फाइनल आंसर है। ठीक है। So here you have a numerical, but you don't have 4 options. Whatever calculation you do, whatever answer you get, you have to type in that answer in that box। ठीक है। तो ये एग्जांपल होगी थ्योरेटिकल, वो सॉरी डिस्क्रिप्टिव की। और दूसरा आप देखो थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव देख लो। ऊपर तो न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव है, तो अब आप जरा थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव में देख लो कि एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जीटा लिमिटेड, दे यूज टारगेट कॉस्टिंग in order to produce relatively low-cost symmetrical mobiles in the country, paying one of the highest hourly labor wage across the globe, suggest ways through which the unit cost per mobile could be reduced। तो टारगेट कॉस्टिंग में हम पढ़ाते हैं कि आपने कॉस्ट गैप कैसे फिल करना है। उसमें हम वेज पढ़ाते हैं कि मटेरियल को आप मॉडिफाई कर सकते हो, लेबर को आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो वो 4 5 6 7 वेज हम पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपने बस सिर्फ ये बताना है कि भाई एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, जितने भी आपको तरीके याद आ रहे हैं। तो लेट्स से अगर ये 5 नंबर का सवाल है और 5 तरीके टाइप कर देते हैं, तो you will be scoring marks। So this is an example of a descriptive theoretical question, and the above is the example of descriptive numerical question, and the above is the example of numerical multiple choice question। और उसके ऊपर जो पहले 2 सवाल किए थे, this is an example of theoretical multiple choice question। ठीक है। सो अभी मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट बड़े एजी हो रहे होते हैं कि हमारे सवालों का जवाब हमें नहीं मिल रहा। जो कि मैं ये बात बता चुका हूँ कि आपके सवालों का जवाब इस सारे उसके मामले में है। तो मैं ज़रा क्विकली देख लेता हूँ, आप अपने अपने क्वेश्चन पुट कर दें अब तक जो आ रहे हैं। मैं वैसे पढ़ चुका हूँ। अमजद ने बुक के बारे में पूछा है, अभी आपको पता लग जाती हैं बुक्स, और जेबी ने भी बुक्स के बारे में पूछा है और नोट्स के बारे में पूछा है। अब मुझे अपने नोट्स देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने नोट्स सिर्फ आपको क्वेश्चंस की हद तक ही दूंगा। मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा जो सीमा के पेपर्स में से या ACC के पेपर्स में से होंगे, ICMA के पेपर्स में से होंगे। थियोरेटिकल हद तक आई एम नॉट गिविंग एनी नोट्स, वी विल फॉलो फ्यू बुक्स कैप्लन की, और वो बुक्स काफ़ी हैं पढ़ने के लिए। ओके, नंबर अभी शेयर हो जाता है। मरियम का रेलेवेंट सवाल है। अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसमें बुक्स हट के अब एक जितना मैंने सेशन आपको पढ़ाया है उसमें से जो रेलेवेंट सवाल बनता है, मरियम ने पूछा है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में वर्किंग के मार्क्स मिलेंगे। देखें, अब तक जो अभी एक एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में तमाम जो गाइड आती रही है वो डायरेक्टली एग्ज़ाम डिपार्टमेंट से आती रही है, और वो हमारे जो सीनियर डायरेक्टर एग्ज़ाम हैं वो मल्टीपल सेशंस फेसबुक के करते रहे हैं। तो उसके मुताबिक और एग्ज़ाम डिपार्टमेंट की गाइड के मुताबिक वर्किंग के आंसर्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। आपको सिर्फ आंसर्स, जो आंसर्स आप दे रहे हो, जो फाइनल आंसर आप दे रहे हो, अगर वो ठीक है तो ठीक है, गलत तो गलत है। वर्किंग के नंबर नहीं मिलेंगे। अब चूंकि वो इन इटसेल्फ सवाल भी छोटे हो गए ना, 2 नंबर का सवाल हो गया, 3 नंबर का सवाल हो गया, तो उसमें वर्किंग के नंबर पहले तो है 15-20 नंबर के सवाल में तो वर्किंग के नंबर बन जाते हैं।
मेरे ख्याल में अभी तक तो अभी अभी आई डोंट नो हाउ इट प्रोसीड्स, अभी दोबारा सीबी ही होने जा रहा है, तो अभी दोबारा से एग्जाम डिपार्टमेंट से हम वो सेशन जब करेंगे तो आप भी डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन पूछेगा इफ दे हैव चेंज देयर स्ट्रेटजी और व्हाटएवर। लेकिन अब तक की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक और पिछले एक्सपीरियंस के मुताबिक वर्किंग के नंबर आपको नहीं मिलेंगे। वर्किंग आप लिख दें ठीक है, नहीं लिखते तब भी ठीक है, आप फाइनल आंसर अगर आपका ठीक है तो आपको नंबर मिलेंगे। Ahad is asking, is there any word limit in answer column of descriptive questions? Generally कोई word limit नहीं होती, ये expandable text box होता है, आप इसमें टाइप करते जाएंगे, ये फैलता जाएगा। लेकिन definitely you have to take care of the time available in actual exam। बहुत टाइम शॉर्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें समझनी होती हैं, करनी होती हैं। आपको पता है प्रोफेशनल एग्जाम में we don't require lengths of the we don't look at length of the answer, we look at the quality of the answer। So if you respond in 2 lines, that's enough। अभी जिस तरह 5 वेज अगर पूछे तो 5 वेज बता दो, अब उसके लिए पूरे एसेस लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी 5 बुलेट्स या 5 लाइंस काफी होंगी। ठीक है, सो ये हो गया जी हमारा थोड़ा बहुत एग्जाम्स के हवाले से, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स के हवाले से ओरिएंटेशन। यहाँ पे अक्सर लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आसान होता है, पेपर बेस्ड एग्जाम आसान होता है क्या, दिस एंड दैट। तो पहली बात तो ये है कि अब जब ऑप्शंस, अब जिस तरह का ज़माना चल रहा है आपने उस हिसाब से चलना है। तो ज़माना तो चल रहा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स का, एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल बॉडीज अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव स्विच्ड टू कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो ये तो एक तो ऑप्शंस की बात है और ज़माने की बात है। दूसरी बात ये है कि ठीक है मरियम, मैं आपके कमेंट पे मजीद आंसर कर देता हूँ। दूसरी बात ये है, मरियम इज सेइंग कि पेपर बेस्ड इजी होते हैं। तो दूसरी बात ये है कि कंप्यूटर बेस्ड में और पेपर जी somehow internet stopped working and I have to reconnect। कोई मुझे रिमाइंड कराएगा what I was saying, आखिरी बात क्या हो रही थी? Anybody, कोई मुझे जस्ट लास्ट वर्ड जो मैं बोल रहा था डिस्कनेक्शन से पहले वो मुझे बता दे ताकि मैं वहां से स्टार्ट करूं। सीबी एग्जाम्स के बारे में बात हो रही थी। थैंक यू आहद। ओके, सो पेपर बेस्ड में बहुत डेप्थ में जो है वो सवाल आ जाता है। अच्छा, अब कंप्यूटर बेस्ड में जो है वो डेप्थ शायद इतनी नहीं एग्जामिन हो सकती, क्योंकि देखिए एग्जामिनर के पास जो चॉइस है वो 2 नंबर से 5 नंबर की है, तो किसी चीज को बहुत डेप्थ में पूछना शायद पॉसिबल नहीं है। हाँ, सीबी में कंप्यूटर बेस्ड में जो ब्रेड्थ है, जो सिलेबस की ब्रेड्थ है, उस पर बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ता है। यानी कि अगर आपके सिलेबस में 19 टॉपिक हैं और 19 टॉपिक के अंदर आपके 20 टॉपिक्स हैं और 20 टॉपिक्स के अंदर 5-5 और टॉपिक्स हैं, तो अगर ये 100 आइटम्स बनते हैं तो आपको 100 आइटम्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उसने आपसे तकरीबन 40 सवाल पूछ लेने हैं और 40 सवाल में वो 40 आइटम तो पूछ ही लेगा कोई ना कोई, किसी ना किसी हवाले से। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में एनी टॉपिक कैन बी एग्जामिन्ड, एनी स्मॉल टॉपिक कैन बी एग्जामिन्ड। तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पूरी कंप्लीट तैयारी नहीं की और उसने सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हुई और उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है,
और उससे 2-2 नंबर के छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं और उससे 10-12 सवालों का आइडिया नहीं होता कि ये कहाँ से है, तो फिर डेफिनेटली वो रह जाता है। लेकिन सवाल कितना मुश्किल हो सकता है, वो सवाल पेपर बेस में ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और सवाल कंप्यूटर बेस में कम मुश्किल हो सकता है। हैविंग सेड दैट, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी कंपेयर्ड बिटवीन दीज टू। यहाँ पे अभी रिसेंटली जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आया लास्ट अटेम्प्ट में, वो तो रिमोट एक्सेस का था, स्टूडेंट के रिसोर्सेज का इशू था, इंटरनेट का इशू था। तो अगर हम टेक्निकल चीज़ को बीच में से निकाल दें, तो एक टेक्निकल चीज़ और स्टूडेंट फेस करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो कंप्यूटर के सामने बैठ के पढ़ना और कैलकुलेट करना और लिखना, उसके ऊपर उसमें प्रॉब्लम होता है, दे आर नॉट यूज्ड टू इट, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है ऑब्वियसली, जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल करते हैं इस तरह के एग्जाम्स को। बट as far as my experience is concerned, giving exams, I would say that computer-based exams are easier to pass for a student who covers everything, uh, not who do selective study. Paper-based में शायद selective study में काम चल जाता होगा, क्योंकि पैटर्न बना के लोग guess कर लेते हैं कि अगले 4 सवाल ये आएंगे, पिछली दफा ये आया था, इस दफा ये आएगा, एंड somehow कहीं ना कहीं वो ट्रेंड एनालिसिस करके 4-5 टॉपिक्स का तुक्का लग जाता है। एनीवेज, इसको हम मजीद अभी डिस्कस नहीं करते। एज वी प्रोसीड, यू विल गेट अ चांस टू टॉक टू मी ओवर दिस इशू। और जैसे जैसे हम सिलेबस गो थ्रू करते जाएंगे, आपको मैं एमसीक्यूज भी दूंगा, आपसे हम क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे, तो आपको खुद ही क्लियर होना शुरू हो जाएगा दैट व्हाट इज ईजी और व्हाट इज डिफिकल्ट। लेकिन अब ये डिबेट रहा नहीं है, ये डिबेट इसलिए नहीं रहा क्योंकि ऑप्शन नहीं है, अब तो करना इस तरीके से है। एंड द दुनिया इज डूइंग the environment around us, everybody is doing this now. Okay, तो अब यहाँ से let me see कि मेरी slides पे और क्या है। अच्छा, अब चूंकि मोस्टली लोग रिसोर्सेज के हवाले से पूछ रहे हैं, रिसोर्सेज के हवाले से लाइक हम कौन सी बुक फॉलो करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप का भी आ रहा है। और तो इसके हवाले से मैं अब आपके साथ जो है वो एक चीज़ शेयर कर लेता हूँ कि मैंने लास्ट सेशन जब पढ़ाया था तो एक गूगल क्लासरूम क्रिएट किया था, और उस गूगल क्लासरूम पे तमाम रिसोर्सेज रख दिए थे। बाय बाय रिसोर्सेज आई मीन सीमा के पास पेपर्स, एसीसी के पास पेपर्स पिछले 10 साल के, आईसीएमए के पास पेपर्स पिछले 10 साल के, ACCA F5 की किताब, सीमा की किताब, और वो तमाम रिसोर्सेज जो मैंने यूज़ करने हैं ओवर टाइम। तो अगर आप लोग जो है वो मुझे अपना जीमेल आईडी दे दें, तो मैं आपको उस गूगल क्लासरूम में ऐड कर दूंगा, एंड यू कैन डाउनलोड द रिसोर्सेज फ्रॉम देयर। ठीक है, और ये व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मुझे, अगर आप में से कोई भी इस नंबर पे, ये मेरा नंबर जो है नीचे 030086310005, इस पे अगर मुझे इनविटेशन भेज दे, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं ज्वाइन कर लूँगा, एंड आई विल बी कीप ऑन टेलिंग यू अबाउट द रिसोर्सेज। मैं आपको क्विकली जो है अपने गूगल क्लासरूम की ज़रा एक शेप दिखा देता हूँ, लाइक what you will find inside it. Okay, so as you will enter this classroom, you will find this tab, classwork tab. आपने इधर जाना है, और इसमें सबसे पहले जो आपको मिलेगा ये लर्निंग रिसोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, ये पूरा एक फोल्डर बना हुआ है लर्निंग रिसोर्सेज का। अब आप यहाँ पे देख लो इसमें क्या कुछ है। इसमें P2 सीमा के पुराने पेपर्स हैं,
इसमें गैरिजन की बुक भी अवेलेबल है, आपका सिलेबस भी है, ACCF 5 की किताब अवेलेबल है, कॉलिन रूरी है, सीमा P2 एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके एग्जाम्स, उसकी बुक, उसकी किट. So whatever resources we will use in the next few days and few months, everything is available here as single folder. ठीक है. और ये चूंकि मेरा पिछला सेशन का क्लासरूम है तो कुछ रिकॉर्डिंग्स शुरू की मैंने इसके अंदर, खुद ही अपलोड की हुई है. अब ICMA वाले आपको खुद ही आप रिकॉर्डिंग्स देते हैं, तो जैसे ही आप ये लेक्चर सुन लेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको आपके पोर्टल में मिल जाएगी. आई डोंट हैव टू गिव यू दैट thing. तो अब यहाँ पे इस क्लासरूम में the only thing which is relevant to you is all these learning resources. And we will cover through various stuff. मैं ज़्यादातर जो कवर कर रहा हूँ वो ACCF 5 की बुक होगी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और उसके बाद जो सेकंड जो बुक होगी वो हमारी P2 सीमा की किताब होगी. So all the syllabus I will cover from P2 SEMA, which is Advanced Management Accounting, and F5 ACCA, which is Performance Management. तो ये जो आपका सारा syllabus है ये इसमें से cover हो जाता है. वैसे अभी recently I came to know that that ICMP is also compiling a book on मेरे ख्याल में वो भी कैप्लन का ही रिसोर्स है जो वो कंपाइल हो रहा है. तो अगर एज अ सिंगल बुक अगर कैप्लन की हमारे पास ICMA की बुक आ जाती है SMA की, जिसमें पूरा SMA का सिलेबस कवर हो रहा होगा, तो फिर वी विल स्विच टू दैट. क्योंकि चाहे ACCA की किताब पढ़ लो चाहे सीमा की किताब पढ़ लो, अगर कैप्लन का रिसोर्स है तो दैट विल रिमेन सेम. और अगर कैप्लन ICMA के लिए रिसोर्स कंबाइन कर रहा है और वो बुक अवेलेबल है तो दैट विल बी यूज एज अ सिंगल सोर्स. क्योंकि मैं उसको मैच कर चुका हूँ, वो सेम चीज़ें सीमा की बुक में और सेम चीज़ें उस रिसोर्स में अवेलेबल हैं, सेम एग्जांपल्स, एवरीथिंग रिमेन सेम, बस सिर्फ पाउंड को रुपी से और लोकल थोड़ा सा उसको किया हुआ है. अच्छा जी, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी करना शुरू कर दिया. इन द मीन टाइम मुझे ईमेल्स भी आना शुरू हो गई हैं गूगल क्लासरूम की. ओके, ये फिर हम करेंगे प्रोसेस जैसे हम ये सेशन ख़त्म करते हैं. ठीक है जी, रिसोर्सेज का आपको पता लग गया. अब अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है, एनीथिंग रिलेटेड टू बेसिक ओरिएंटेशन, वो पूछ लें मेरे से. अच्छा जी, तैयब ने एक अच्छा सवाल पूछा है, और is it necessary to attend live lectures or can we take recorded lectures later? Will it affect our attendance or not? अच्छा, ये जो attendance policy है ये तो आप ICMA फीस से ले लें. I am not that much aware of the attendance policy being a faculty member, लेकिन मैं आपको इसकी दूसरी साइड ज़रूर बताना चाहूँगा. मैं अटेंडेंस पॉलिसी में तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक जो ऑनलाइन लर्निंग के कुछ इश्यूज हैं उसके अंदर वन ऑफ द पॉइंट इज जो मैंने बनाया हुआ है वो कुछ इसी किस्म का ही है. चले मैं इस पर दोबारा आता हूँ. लेकिन देखें, जितना आप लाइव क्लास में सीख सकते हैं उतना आप रिकॉर्डिंग में नहीं सीख पाएंगे. गो के द कंटेंट विल बी द सेम, वही चीज़ है, वही रिकॉर्डिंग में मिलेगी. लेकिन लाइव क्लास में ये फ़ायदा होता है कि आप बाउंड रहते हैं, आपको पता है कि हाँ मैंने 1.5 घंटा निकालना है, 1.5 घंटा पढ़ना है. आप अपना माइंड अप्लाई करते हैं, आप वेट करते हैं सर अगली बात क्या करेंगे, अगली बात क्या पढ़ाएंगे. रिकॉर्डिंग के अंदर एक तो आप लेजी हो जाते हैं. अच्छा भाई मैं रात को सुन लूंगा 8 बजे, अच्छा चलें अभी तो मैंने ड्रामा देखना है, मैं 9 बजे कर लेता हूँ. अच्छा चलो मैं 11 बजे करता हूँ, मैं पहले ये काम कर लूँ. 12 बजे, अच्छा 12 बजे भी लेक्चर स्टार्ट किया और लेक्चर चलाया तो अच्छा अभी सर ना बस ऐसे ही कुछ जनरल बातें ही कर रहे हैं. अब जिस तरह अगर आप मेरी ओरिएंटेशन का ये वाला लेक्चर चला रहे होंगे, अच्छा अभी सर तो गप्पे ही लगा रहे हैं, सर तो बस ये बातें बता रहे हैं, अभी फिर मैं ना मेन बात पे चलता हूँ. आप उसे फॉरवर्ड करोगे 30 मिनट आगे ले जाओगे, आप 1.5 घंटे के लेक्चर कोशिश करोगे कि मैं 30 मिनट में ले लूँ. सो दैट इज नॉट एडवाइजेबल. हाँ, बहुत बड़ी मजबूरी है और वाकई स्टूडेंट्स की होती है. आप लोगों में से कई लोग जॉब्स कर रहे होंगे, जॉब्स के अपने प्रेशर हैं, टाइम क्लैशेस हैं, व्हाटएवर. उसके अंदर भी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए. मेरे पास 50 कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं और बड़े सीनियर स्टूडेंट्स हैं और बड़ी सीनियर पोस्ट पे हैं
दे से कि हम ऑफिस के अंदर आपके लेक्चर सुन रहे होते हैं, हमने घंटा 1.5 घंटा ऑफिस में से अपने निकाला हुआ है और बॉसेस से परमिशन मिली हुई है, तो हम वहीं पे सुन लेते हैं। कोशिश करें एज मच एज पॉसिबल दैट यू टेक क्लासेस लाइव। आपकी लर्निंग में 100% जो है वो फर्क पड़ेगा इफ यू आर टेकिंग क्लासेस लाइव एंड इफ यू आर टेकिंग क्लासेस रेगुलरली। हाँ, अगर आप रिकॉर्डिंग्स, आपकी मजबूरी है, आप रिकॉर्डिंग्स पे जाना चाहते हैं, कुछ लेक्चर्स रिकॉर्डिंग पे सुनना चाहते हैं, ज़रूर सुने, लेकिन फिर मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप उसको चलने दें बस जिस तरह वो चल रहा है। 1.5 घंटे के लेक्चर को 1.5 घंटा चलने दें अपनी रिकॉर्डिंग में, उसको इंटरप्ट ना कीजिएगा कि नहीं अब इसको आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसको पीछे कर देता हूँ, फिर आप उसको उसके ड्यूरेशन में करने दें। बाकी मेरे ख्याल में अटेंडेंस पॉलिसी शायद सॉफ्ट ही होती है, आप कंफर्म ज़रा कर लीजिएगा। आई थिंक, आई बिलीव कि इसकी अटेंडेंस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए if you are taking some lectures as in recorded form, but that will be confirmed by some of the administrators. जी, any other question anyone is having right now? Well, this is one opportunity to talk uh, about different matters. अभी पहली क्लास में हमारे पास अभी टाइम है एक जनरल बातें करने का, फिर जैसे ही हम स्टार्ट हो गया टॉपिक तो फिर हम तो टॉपिक पे बात करेंगे। कन्वीनियंस का मसला नहीं है हरीश, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। वैसे कन्वीनियंट होता नहीं है, लेकिन कन्वीनियंस का मैटर भी नहीं है। दिस इज अ पॉलिसी, दिस इज पॉलिसी, वी डोंट अलाउ। और इसकी एक लॉजिक भी है, और वो आपको उस वक्त समझ आएगी जब इसको अनम्यूट किया जाएगा, अभी शायद आपको समझ ना आए। There are so many students taking these classes, like कुछ courses में तो 150 स्टूडेंट भी होता है, 100 स्टूडेंट भी होता है, 50 भी होता है। अनम्यूट अगर हम कर दें तो एक अच्छी खासी डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है, प्रोटोकॉल्स के इशू आते हैं, टाइम ज़ाया होता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो बेसिकली आई एम in charge of taking this class. You have to just follow me during class. Whatever comes to your mind, type in your query, I will reply that. So it's purely interactive. uh, you will be replied all concerns, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बेफिक्र है, क्लास के एंड तक वो कंसर्न क्लियर ही होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो कंसर्न क्लियर के बगैर क्लास खत्म हो जाए, ठीक है। तो और दूसरा, हाँ, अब देखें ना, अब आपका पॉइंट मैं आप समझाऊं आपका अगला कमेंट पढ़ के कि ओरल क्वेश्चनिंग आंसरिंग विल बी मच मोर कंफर्टेबल फॉर अस सर। अब यहाँ पे एक मेरा पॉइंट है, यहाँ पे हमने आपको एजुकेट करना है। अब यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हम लिख के बात नहीं करना चाह रहे, ठीक है। हम वही ऑरल कल्चर के आदी हैं, बस ज़बानी कलामी बात कर लें। अब जितना आप इस वक्त ये चैट ऑप्शन यूज करेंगे ना, टाइप करेंगे, समझे आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस हो रही है। कल आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होना है, कल आपसे हमने कहना टाइप करो, हमने ये नहीं कहना जवाब हाथ से लिखो या जवाब बोल दो, हमने कहना टाइप करो। तो आपको अपनी थॉट्स को लिख के बताने की और टाइप करके बताने की, पूछने की आदत होनी चाहिए। दिस इज दीज डेज हम तो सारा कुछ अब देखें, पढ़ा भी डिजिटल ही रहे हैं, आप समझ भी डिजिटल ही रहे हैं। ये एक डिफरेंट मॉड है, डिफरेंट वे है समझने का और समझाने का। तो जितना आप अपने आप को मॉडर्न दौर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अडेप्ट करेंगे और जितनी जल्दी करेंगे, यू विल बी कंफर्टेबल। शुरू में अनकंफर्टेबल होता है, आप अनकंफर्टेबल हो गए, शुरू में अनकंफर्टेबल हो गए, लेकिन बाद में आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि फिर आपको दूसरा काम अनकंफर्टेबल लगेगा। लाइक इवन मेरे लिए इस वक्त पढ़ाना, मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने फिजिकली कोई स्टूडेंट नहीं है, मैं आपकी शक्ल नहीं देख रहा, आप मेरी शक्ल नहीं देख रहे, मुझे तो पता भी नहीं है कि कोई है भी सही मेरे सामने या नहीं।
और इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई एम टॉकिंग टू अ कंप्यूटर बॉक्स, मैं अपने कंप्यूटर के सामने उसको बोल ही जा रहा हूँ, मुझे कोई जेस्चर नहीं मिल रहा, कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा, कोई हाँ में जवाब नहीं मिल रहा, कोई ना में नहीं मिल रहा। मेरे लिए भी ये बड़ा मसला है। बट अब हम इतने एडजस्ट हो चुके हैं इस एनवायरनमेंट के साथ कि वी आर टीचिंग ऑलमोस्ट 8 आवर्स अ डे और 9 आवर्स अ डे ऑनलाइन टू सो मेनी स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, अब्रॉड, व्हाटएवर। स्टूडेंट भी समझ रहे हैं, उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये ईज़ और आपकी ये कन्वीनियंस डेवलप होगी। बोलने अगर मैं दे दूं तो फिर आप देखिएगा यहाँ पे क्या क्या मसला होता है। जी जी, मैं भी आपको आपकी सजेशन के तौर पे ले रहा हूँ, बस जस्ट मैं एक अपना एक ओपिनियन आपको बता रहा था। Shanaz, I've just joined the class. Did you start course in previous hour? Have I missed anything? You absolutely didn't miss anything. किस पिछली क्लास हुई नहीं थी। आज पहली क्लास है। मैं पहली क्लास में मोस्टली ओरिएंटेशन करता हूँ। आज सब्जेक्ट की मैंने ओरिएंटेशन और अपनी अप्रोच बताने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में आई एम डन विद दैट। और अब यहाँ से ऑनवर्ड मैं एक छोटा सा टॉपिक आज स्टार्ट करूँगा और उसको फिर हम कल कंप्लीट करेंगे। सो यू हैवंट मिस एनीथिंग। तो चले, मेरे ख्याल में हम जनरल स्टफ से हटकर जो है वो सो हैव अ लुक एट योर सिलेबस। मेरी एक आदत है कि मैं सिलेबस को उसके सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ। तो पार्ट ए पहला पार्ट है, उस पार्ट ए का पहला टॉपिक है कॉस्ट प्लानिंग, और उस कॉस्ट प्लानिंग का पहला टॉपिक है लर्निंग कर्व। सो आई एम गोना स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट, learning curve, and I will proceed with the other concepts in this part: life cycle costing, target costing, value analysis, functional analysis। ये इस पार्ट ए में 1 का सिलेबस है। तो let's start with understanding our first concept, learning curve। तो जिन लोगों ने अभी भी अगर ज्वाइन किया है तो वो समझें कि वो ये पहला टॉपिक पढ़ने लगे हैं। whoever has joined right now, I guess 16 students have joined। So to all of you, this is our first topic। जितना आज कवर हो सकेगा इंट्रोडक्शन की हद तक या फिर अंडरस्टैंडिंग की हद तक वो हम कवर करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो बुक आपके सामने है दैट इज ऑफ ACCA F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कैप्लन की ये किताब है। उसके अंदर दिस इज आई गेस पेज नंबर 2 या 284 पे ये यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है। ये वैसे मैंने सेपरेटली इसका PDF जो है वो अपलोड भी किया हुआ है गूगल क्लासरूम पे। मेरी वैसे भी कोशिश है, आई विल टॉक टू दी मैनेजमेंट टुडे, कि अगर तो इस तरह का कोई रिसोर्स सिंगल डेवलप हो गया है तो हम एक ही किताब पे आ जाए, ना कि हम बार बार किताबें स्विच करें, कभी इस किताब में से चैप्टर पढ़ा, कभी इस वक्त तकरीबन 50% कंटेंट हमने इस ACCA की किताब से पढ़ना है, तकरीबन 50% कंटेंट हमने सीमा की किताब से पढ़ना है राइट नाउ जो इस वक्त चल रहा है। लेकिन अगर आई विश कि ये अगर इकट्ठा हो जाए और एक रिसोर्स ICMA का अपना SMA का डेवलप हो जाए, जो कि आई हर्ड हो रहा है और शायद अवेलेबल हो जाए, तो वो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। तो होपफुली अगर वो होता है तो फिर हम उस पर स्विच कर लेंगे। सो व्हाट इज लर्निंग कर्व? अच्छा, अब लर्निंग कर्व को समझाने से पहले एक मैं लर्निंग कर्व के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि लर्निंग कर्व एक ऐसा टॉपिक है जो हर टॉपिक में आ सकता है। लाइक आप कॉस्टिंग कर रहे हो, लर्निंग कर्व आ सकता है। आप प्राइसिंग कर रहे हो, लर्निंग कर्व आ सकता है। आप प्लानिंग कर रहे हो, लर्निंग कर्व आ सकता है। आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, लर्निंग कर्व आ सकता है। आप SMA का कोई भी टॉपिक उठा लो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी कोई भी टॉपिक उठा लो, अगर मैं चाहूँ
तो मैं उस टॉपिक के अंदर जो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे उसमें लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट एम्बेड कर सकता हूँ. आई हैव यूज्ड द टर्म एम्बेडिंग. मैं एम्बेड कर सकता हूँ. एसएमए में खास तौर पे इस लेवल पे आके जो क्वेश्चंस आते हैं, और पेपर बेस में तो खास तौर पे, अब कंप्यूटर बेस में मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन का जो डेप्थ है वो चूंकि कम हो गई है, तो अब ये चीज़ इतनी पॉसिबल नहीं है. अदरवाइज पेपर बेस एग्जाम में तो ऐसा होता था कि एसएमए के एक क्वेश्चन में दूसरा टॉपिक, 2-3 टॉपिक मिल के आ रहे होते हैं. तो लर्निंग कर्व एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी टॉपिक के अंदर डाला जा सकता है. मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सवाल पूछ रहा हूँ, लर्निंग कर्व बीच में आ सकता है. मैं टारगेट कॉस्टिंग का सवाल पूछ रहा हूँ, लर्निंग कर्व बीच में आ सकता है. तो लर्निंग कर्व की मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, और लर्निंग कर्व इन इटसेल्फ भी एक टॉपिक है, और इससे इन इटसेल्फ भी एमसीक्यूज आते हैं, इन इटसेल्फ भी क्वेश्चंस आते हैं, और ये किसी दूसरे टॉपिक के अंदर भी आता है. तो इसकी इंपॉर्टेंस यूं समझ लें, दैट रन्स थ्रू होल ऑफ द कोर्स. दिस इज वन सिंगल टॉपिक व्हिच इफ यू अंडरस्टैंड तो फिर पूरे कोर्स में आपको फायदा है. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड तो पूरे कोर्स में आप फंसे ही रहेंगे. आप फिर मेरे से पूछेंगे कि सर ये लर्निंग का बीच में ये बता दें ये क्या है. तो एक दफा इसको हम अच्छी तरह समझ लेते हैं. अच्छा, अब जरा इस पे हम थ्योरेटिकली एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. लर्निंग कर्व हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि दिस हैज समथिंग टू डू विद द लर्निंग. तो आपने नोट किया होगा कि कोई काम आप जब पहली दफा करते हैं, और काम को हम थोड़ा सा ले लेते हैं स्ट्रक्चर्ड काम, स्ट्रक्चर्ड वर्क. मिसाल के तौर पे आपने जब पहली दफा कीबोर्ड पे टाइपिंग करनी शुरू की होगी, तो आपने एक जुमला कितनी देर में लिखा होगा. और मिसाल के तौर पे आज भी जो लोग इस वक्त टाइपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पहली दफा कर रहे हैं, पहली दफा कुछ टाइप कर रहे हैं, तो वो दे विल बी टेकिंग मोर टाइम. मैंने पहली दफा अगर एक लाइन लिखी होगी कंप्यूटर पे टाइप करके, तो आई डोंट नो हाउ मेनी मिनट्स आई टुक. और होता यह है कि बार बार वो काम करने से, बार बार करने से, बार बार करने से, बार बार टाइप करने से, बार बार कीबोर्ड पे टाइप करने से आप उस काम को सीख जाते हैं. उसकी लर्निंग आपकी डेवलप हो जाती है. आप उस काम के लर्निंग के कर्व पे ऊपर चले जाते हैं. ठीक है. तो लर्निंग कर्व का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? लर्निंग कर्व का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप एक रूटीन काम को बार बार करते हैं, तो आपका जो टाइम है वो बार बार करने से टाइम कम होता जाता है उस काम को करने से, क्योंकि वो काम आपका बार बार करने से फेमिलियर होता जाता है, और फेमिलियरिटी की वजह से आप उसको फिर नेक्स्ट टाइम जल्दी कर पाते हैं. इसी चीज को हम लर्निंग कर्व कहते हैं. इसी चीज को हम कहते हैं कि जी मेरी लर्निंग कर्व बेहतर हो गया है, मेरी लर्निंग, हम लर्निंग कर्व की हायर स्टेज पे चले गए हैं. अब वो काम जो पहले मैं 10 घंटे में करता था, मेरे से 9 घंटे में हो जाता है. जो 9 में करता था 5 घंटे में हो जाता है. जो 5 घंटों में करता था वो अब मैं 4 घंटों में कर लेता हूँ. सो एक तो जो लर्निंग कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी आम लाइफ में आप देख लें कि बिल्कुल ऐसे ही है. आम लाइफ में आपको ये कॉन्सेप्ट इसी तरीके से मिलेगा. सो व्हेन एन ऑपरेशन इज परफॉर्म फर्स्ट टाइम, चूंकि ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और काम अनट्राइड होता है तो ज़्यादा टाइम लगता है, और जब हम उसे बार बार रिपीट करते हैं तो वर्कर्स की फेमिलियरिटी बढ़ती है, उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, और जब एफिशिएंसी बढ़ती है तो इसका ताल्लुक अब सीधा सीधा किससे आ गया? लेबर कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइंस. अब ये उसका कनेक्शन बन गया कॉस्टिंग के साथ कि पहला यूनिट बनाया 10 घंटे लगे, 10 घंटे की लेबर. दूसरा यूनिट बनाया लेट से 9 घंटे लगे, तो 9 घंटे की लेबर कॉस्ट पड़ेगी. और अगर 1000वां यूनिट बनाने पे आपका टाइम रिड्यूस हो जाता है और सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाता है, तो इसका मतलब आपकी लेबर कॉस्ट सेव हो जाएगी. तो लर्निंग कर्व की डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है लेबर टाइम के साथ और लेबर कॉस्ट के साथ. अच्छा, अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली देखना है. अभी ये तो हमने थ्योरेटिकली एक आम लफ्जों में बात की. ठीक है, हमने थ्योरेटिकली एक आम लफ्जों में बात की. अब थ्योरेटिकली ही बात करेंगे, लेकिन कुछ खास लफ्जों में बात करेंगे. एंड बाय खास लफ्ज आई मीन अ लीगल लैंग्वेज, अ लॉ. इसको हम अगर एक लॉ की फॉर्म में डिस्क्राइब करें इस लर्निंग कर्व के इफेक्ट को, तो देयर इज अ राइट्स लॉ जो इस लर्निंग कर्व का एक जो इफेक्ट है उसको इन्होंने डॉक्यूमेंट किया थ्रू ऑब्जर्वेशन.
अब इसको हम जरा टेक्निकली पढ़ते हैं. So Wright's law states that as cumulative output doubles, cumulative output मजमूई आउटपुट. So कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 यूनिट बनाते थे और अब अगर ये डबल होता है 2 यूनिट, डबल होता है 4 यूनिट, डबल होता है 8, डबल होता है 16. So as मजमूई आउटपुट doubles, the cumulative average time per unit falls to a fixed percentage. तो जो आपका cumulative average time per unit होगा, तो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल क्या आ गया, ये पहला वेरिएबल हुआ आउटपुट, कि जब आपकी मजबूरी पैदावार डबल होती है तो उसका इम्पैक्ट cumulative average time per unit पे क्या होगा, आपका जो cumulative average time per unit है वो फॉल कर जाएगा. मिसाल के तौर पे अगर पहले यूनिट को 100 घंटा लगता था, अगर पहले यूनिट को 100 घंटे लगते थे, तो अब डिपेंड करता है हम यहाँ पे लर्निंग रेट कौन सा लेंगे. लर्निंग रेट 90% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है. अब ये डिपेंड करता है, इस पे मैं भी बाद में बात करता हूँ. 70% भी हो सकता है. हम इस वक्त अज्यूम कर लेते हैं कि लर्निंग रेट जो है वो 80% है. तो अब ये लॉ ये कहता है कि जब आपकी कम्युलेटिव आउटपुट डबल होती है, यानी कि 1 से 2, तो आपका जो कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट है वो फॉल कर जाता है टू अ फिक्स परसेंटेज. और वो फिक्स परसेंटेज क्या है, लर्निंग रेट. अब अगर लर्निंग रेट 80% है तो मेरा 2 यूनिट बनाने का जो कम्युलेटिव एवरेज आएगी ना, वो आएगी 80. यानी कि पहला यूनिट तो 100 घंटे में बना, लेकिन 2 इकट्ठे यूनिट 80 घंटों में बने. सो 80 इज द एवरेज. तो अगर हम बात करें कि 2 यूनिट का टोटल टाइम क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं एक और कॉलम बना लूँ टोटल टाइम का, तो पहले यूनिट पे 100 और दूसरे यूनिट्स पे टोटल टाइम लग गया 160. और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि दूसरे यूनिट पे कितना टाइम लगा, तो दूसरे यूनिट पे हमारा 60 का टाइम लगा. ये वाले कॉलम्स अभी आप सीखे ना, कोई जरूरत नहीं है. अभी आगे जाते हैं, अगले टेबल पे हमें ये कॉलम्स डिटेल में सीखने को मिल जाएंगे. फिलहाल आपने ये सीखा कि एज कम्युलेटिव आउटपुट डबल्स, cumulative average time per unit falls to a fixed percentage. और वो फिक्स परसेंटेज क्या है, लर्निंग रेट है. लर्निंग रेट ऑर्गेनाइजेशन का, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्तलिफ होता है. 80% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है, 65% भी हो सकता है. अच्छा, अब चौथे यूनिट 2 से 4 पे क्या होगा, 2 से 4 पे आपका फिर ये फॉल कर जाएगा 80%. अब 80% से अगर मैं 80% टू 80% फॉल करे, तो 4 यूनिट्स पे आपका जो कम्युलेटिव एवरेज आएगी वो 64% आएगी. मैंने क्या किया, मैंने 80 का 80% ले लिया. यहाँ पे क्या किया था, मैंने 100 का 80% लिया था. तो हो ये रहा है कि जैसे जैसे कम्युलेटिव आउटपुट डबल होती जा रही है, मेरा जो एवरेज टाइम है वो फॉल करता जा रहा है 80% से 80% से 80% से. ठीक है. तो अब आप लोग मुझे टेक्स्ट करके बताएंगे कि मैं अगर 8 यूनिट इकट्ठे बनाता हूं, अगर मेरी आउटपुट डबल हो जाती है, 4 से 8 हो जाती है, तो आप मुझे बताइएगा कि कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट कितना होगा. जी, टाइप इन योर आंसर प्लीज. एग्जैक्टली 51.2. सो मेरा जो कम्युलेटिव एवरेज टाइम हो जाएगा वो 51.2 हो जाएगा. और अगर फिर डबल हो जाए, तो 51.2 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा, 40.96. तो ये होता जा रहा है, आउटपुट डबल होती जा रही है और जो कम्युलेटिव एवरेज टाइम है वो गिरता जा रहा है. कितने से गिर रहा है, एक फिक्स परसेंटेज से गिर रहा है. वो फिक्स परसेंटेज क्या है, वो लर्निंग रेट है. और वो हमने इस वक्त अज्यूम किया हुआ है 80%. अब 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, ये गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा. अब डेफिनेटली चूंकि ये टाइम गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो इसका मतलब है लेबर एफिशिएंट होती जा रही है, एफिशिएंट होती जा रही है. उसका मतलब है लेबर कॉस्ट कम होती जा रही है, कम होती जा रही है. और लेबर कॉस्ट के कम होने से आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो रही है, ओवरऑल कॉस्ट कम होने से आपकी प्राइसिंग पे इम्पैक्ट आएगा. सो इसकी एक लंबी चौड़ी कनेक्शन है तमाम चीजों के साथ, लेकिन प्राइमरी कनेक्शन किसके साथ है, लेबर के साथ. ठीक है.
अब ये हमने लॉ की फॉर्म में पढ़ लिया। अब इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो डायग्रामेटिकली और फिर इसको मैथमेटिकली देखते हैं। जी हरीश, आपका अच्छा सवाल है कि अगर डिक्लाइन हो रहा है तो सर नेगेटिव में नहीं जाता जाएगा। अच्छा, अब हाँ, अब यहाँ पे देखें, हम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि अगर आप टाइपिंग करते आ रहे थे और अब टाइपिंग करते करते आपको 20 साल हो गए हैं तो अब आप 1 सेकंड में टाइपिंग कर लोगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला। या आप सोचोगे तो टाइपिंग हो जाएगी खुद ब खुद ही, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। जब एक काम अनफेमिलियर होता है तो वो ज्यादा टाइम लेता है और आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हो। जब आप फुली सीख जाते हो तो फिर लर्निंग कर्व खत्म हो जाता है, आप उसको मजीद नहीं सीख सकते। ठीक है, और फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो एक जगह पे लर्निंग स्टॉप हो जाती है, एक जगह पे लर्निंग सीज हो जाती है। तो लर्निंग कर्व थ्योरी ये नहीं कह रही कि आपका जो लर्निंग है वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए है। लर्निंग एक जगह पे स्टॉप हो जाती है। अच्छा, स्टॉप कैसे होती है, डायग्रामेटिकली देखते हैं। जी नहीं, कोई फिक्स टाइम इस चीज का नहीं है, लॉ नहीं कहता। शनाज has asked this कि कोई फिक्स टाइम तो होगा नहीं, लॉ ये नहीं कहता कि एक फिक्स टाइम होता है। लॉ ने आपको सिर्फ ये कह दिया कि एज कम्युलेटिव आउटपुट डबल्स कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट फॉल्स टू फिक्स परसेंटेज। अब ये आपकी मैनेजमेंट की जो एक्सपीरियंस है और उसको जो बिजनेस का जो रन करने का तजर्बा है, ये मैनेजमेंट को पता है कि लर्निंग जो है, और उनके पास्ट पास्ट ऑब्जर्वेशन की बेस पे, पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे वो बताएंगे। लेकिन हम हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एक बात ख्याल रखिएगा, हमें लर्निंग रेट क्या है मैनेजमेंट ने बताना है, लर्निंग कब तक जारी रहती है मैनेजमेंट ने बताना है, लर्निंग स्टॉप कब हो जाती है मैनेजमेंट ने बताना है। हमने तो उस लर्निंग के रेट की और लर्निंग की इम्प्लीकेशंस की जो कॉस्टिंग साइड है वो देखनी है, और वो हम आज सीख रहे हैं। ठीक है, वो आज हम सीख रहे हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता, अभी थोड़े से आप लोग एजी हुए हुए हैं, और यही मैं प्रॉब्लम, ये जो जब मुझे कहा गया ना अनम्यूट कर दें, तो अनम्यूट करने में भी यही प्रॉब्लम है, आप थोड़े से अभी एजी हुए हुए हैं। एजी का मुराद ये है कि एक टॉपिक जब मैंने पूरा कंप्लीट ही नहीं किया, मैंने अभी आपको इसका ग्राफ नहीं दिखाया, मैंने अभी लर्निंग के स्टॉप करने की बात नहीं की, मैंने अभी इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं बताया, मैंने अभी इसकी 4-5 चीज़ें वो नहीं बताई। सो अगर आप इन द मीन टाइम सवाल पूछना शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली होगा ये कि इंटरप्शन हो जाएगी। वो अगर मैं ऑन कर दूं तो आप बोलेंगे मैं आपका जवाब दूंगा, दूसरा बोलेगा जवाब दूंगा, थोड़ी सी इंटरप्शन होती है, इसलिए वेट करें। प्रोटोकॉल ही है ऑनलाइन क्लासेस का, लेट दी टॉपिक टू फिनिश टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एक जगह पे आके लॉजिकली जब टॉपिक खत्म होता है सवाल होल्ड करके रखें, और वहां पे जब टीचर कहते हैं जी देखें जी मैंने पढ़ा दिया आपको, अब सवाल पूछें, कौन सा पूछते हैं। हो सकता है आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले ही क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं अभी ये टोटल टाइम और ये सिंगल टाइम और ये सारा कुछ ये भी आपको क्लियर हो जाता है। डायग्रामेटिकली देखिएगा, डायग्रामेटिकली एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हैं, वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है, कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। लॉ क्या कहता था कि जैसे जैसे आप कम्युलेटिव आउटपुट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट गिरता जाएगा। भाई कब तक गिरेगा, अब यहाँ पे आप इस कर्व से अंदाजा लगा लो कि ये कर्व एक जगह पे आके रुक गया है, इट फॉल्स 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 फॉल्स, और इसमें फॉल होने की जो रफ्तार है वो ऐसा ऐसा कम हो रही है, और ये एक स्टेज के बाद ये आके ये यहाँ पे लर्निंग हो गई है सीज, इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, so this is diagrammatic representation uh, of the learning curve theory. As cumulative output doubles, your cumulative average time per unit falls to a fixed percentage. अच्छा, so basically this is the part where uh, it ceases.
तो यहाँ पे आप देख लें, जो मिसाल मैं आपको दे रहा था उससे सेम मिसाल 1 से 2, 2 से 4। तो यहाँ पे बेसिकली वी हैव टू अज्यूम कि इन्होंने लर्निंग रेट क्या लिया हुआ है। अच्छा नहीं, चले मैं आपको अगले टेबल पे ले जाता हूँ, होल्ड कीजिएगा 1 मिनट। मैं आपको ना ये खाली टेबल सॉल्व कराता हूँ ताकि आपकी ये जो कंफ्यूजन है पहले ये दूर हो जाए। अब जरा मेरे साथ फिल कीजिएगा, यू विल ऑल लर्न, यू विल ऑल लर्न। और फिर मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ और फिर ही सवाल पूछेगा, अभी आपको सवाल इसमें पूछेगा भी ना, मुझे डिस्टॉर्शन वो डिस्टर्बेंस होगी। 100 यूनिट्स फॉर द फर्स्ट यूनिट, 80% लर्निंग रेट। अब हम इस टेबल को फिल करते हैं, 1 2 4 8, मोर और लेस वही सवाल है जो मैं आपके साथ कर रहा था। पहले यूनिट को कितना लगा, 100 आवर्स। 2 यूनिट बनाएंगे तो कम्युलेटिव एवरेज क्या आएगी, कम्युलेटिव एवरेज आएगी 80, ठीक है, कम्युलेटिव एवरेज आएगी 80। 4 यूनिट बनाएंगे 64, 8 यूनिट बनाएंगे 64.80, 51.2। अब जरा यहां से टोटल टाइम कैलकुलेट कीजिएगा, टोटल टाइम, 1 यूनिट बनाने का जो टोटल टाइम है वो कितना है, 100। 2 यूनिट बनाने का टोटल टाइम कितना है, 160। 4 यूनिट बनाने का टोटल टाइम कितना है, 256। देखें ये चीज आप जहन में बिठा लें कि जो ये कॉलम है ये है कम्युलेटिव एवरेज, दिस इज कम्युलेटिव एवरेज, यानी कि 2 यूनिट बनाने की इकट्ठी एवरेज, 4 यूनिट इकट्ठे बनाने की एवरेज, 8 यूनिट इकट्ठे बनाने की एवरेज। तो जब आप एवरेज को यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल टाइम। तो 8 यूनिट्स का जो टोटल टाइम बनता है दैट इज 409.6, ठीक है, वो बनता है 409.6। नहीं जी 180 नहीं होगा, ये यही गड़बड़ है, ये थोड़ा सा आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो। ना द वन हु इज सेइंग मी के 2 यूनिट्स बनाने का टाइम 180 हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि आप ये देखो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं 2 यूनिट इकट्ठे बनाऊं तो इनकी जो एवरेज टाइम आ रहा है वो 80 आवर्स पर यूनिट आ रहा है एवरेज। तो 2 यूनिट्स इकट्ठे बनाने का जो टाइम होगा वो 160 होगा, 160 आवर्स, ठीक है। सो टोटल टाइम यहां से आ गया, ठीक हो गया। अब इसी चीज को हम एक और सेंस में देखते हैं और उसको अब हम इंक्रीमेंटल सेंस में देखते हैं। इंक्रीमेंटल सेंस में असल में ये क्यों हम कर रहे हैं, ये वाली एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, कभी एवरेज निकाल रहे हैं कभी टोटल निकाल रहे हैं, हमने इस चीज को हर एंगल से समझना है, ठीक है। हमने इस चीज को हर एंगल से समझना है, कभी हमें इंक्रीमेंटल सेंस में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कभी हमें टोटल सेंस में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कभी हमें एवरेज सेंस में कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जो लॉ है वो आपको जो बता रहा है वो एवरेज के सेंस में बता रहा है, लेकिन कैलकुलेशन किसी भी तरह से करनी पड़ सकती है। तो अब अगर हम इसको इंक्रीमेंटल सेंस में देखें तो 1 यूनिट और 2 यूनिट और 4 यूनिट और 8 यूनिट, तो 1 यूनिट बनाने का टोटल टाइम कितना है, 100, ठीक है। टोटल टाइम, टोटल इंक्रीमेंटल टाइम कितना है, 100। अब मुझे ये बताइएगा, अभी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, टाइप करके बताना है आप लोगों ने, कि अगर मैं 2 यूनिट बनाता हूं तो इजाफी टोटल टाइम कितना है। आई रिपीट द क्वेश्चन, अगर मैं 2 यूनिट्स बनाता हूं तो इजाफी टोटल टाइम कितना है। यस 60, 60 इजाफी टोटल टाइम कितना है, 60। बाकी लोगों को मैं देख लेता हूं।
अमजद इज सेइंग 96। ये जरा 96 तो बताइएगा कैसे है 96। अच्छा 96 4 यूनिट्स का होगा, ठीक है। सो 2 यूनिट्स बनाने पे इजाफी टाइम 60 है। अब 4 यूनिट्स बनाने पे इजाफी टाइम कितना है? तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप 256 और 160 का डिफरेंस ले लोगे, तो इसका डिफरेंस लोगे तो ये 96 आएगा। और उसके बाद 409.6 माइनस 256 ये आ जाएगा 153.6। अब देखो ये एक डिफरेंट थिंकिंग है। इस थिंकिंग में क्या है, इस थिंकिंग में ये है कि आप ये देख रहे हो कि इंक्रीमेंटल टोटल टाइम क्या है। इंक्रीमेंटल टोटल टाइम आपका निकला, आपने कहा पहले यूनिट को 100 घंटे लगते हैं, दूसरे यूनिट को मिलाकर 160 घंटे बनते हैं, तो दूसरे यूनिट का जो इजाफी टाइम लग रहा है वो 60 यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरा यूनिट बनाने पे कितना टाइम लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे 60 आवर्स लग रहे हैं। 2 यूनिट बनाने पे एवरेज 80 आवर्स लग रहे हैं, लेकिन दूसरे यूनिट पे कितना टाइम लग रहा है 60 आवर्स। अच्छा, अब एक कॉलम और है, उसको भी हम फिल कर लेते हैं ताकि हमारी ये जो लर्निंग है वो पूरी हो जाए। अब वो है एवरेज टाइम पर यूनिट का। तो ये कह रहे हैं कि इंक्रीमेंटल की भी एवरेज निकाल दो, ठीक है। ये कह रहे हैं इंक्रीमेंटल की भी एवरेज निकाल दो। अच्छा हाँ, ये एक सॉर्ट ऑफ हाँ, ये एक सॉर्ट ऑफ करेक्शन है, वो मुझे आइडेंटिफाई कर दी है स्टूडेंट्स ने, दैट्स राइट। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं कि इसको लिखना हमने यूं था 1 1 2 4। हाँ, इसको हमने लिखना यूं था, सॉरी, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें, क्योंकि देखें हमने इंक्रीमेंटल भी यूनिट्स की सेंस में लिखना है ना। तो 1 और 2 का इंक्रीमेंटल 1 ही होगा, और 2 और 4 का इंक्रीमेंटल 2 होगा, और 4 और 8 का इंक्रीमेंटल 4 होगा। तो यूनिट्स को भी हमने इंक्रीमेंटल सेंस में लिखना था, वो मैंने वहां से कॉपी कर लिया। ये किसी ने मुझे हाईलाइट किया, सो थैंक यू वेरी मच, आपने बिल्कुल ठीक हाईलाइट किया है। एंड हु इज दिस? अरसलान। ओके, तो अब एवरेज हमें समझ आ जाएगी। 100 को 1 पे डिवाइड करें तो एवरेज 100 है, 60 को 1 पे डिवाइड करें एवरेज 60 है, 96 को 2 पे डिवाइड करें एवरेज 48 है, और 153.6 को 4 पे डिवाइड करें तो एवरेज 38.4 है। तो ये जो सारा कॉलम हमने बनाया है, ये जो सारा कॉलम हमने बनाया है, ये किस सेंस में बनाया है? इंक्रीमेंटल सेंस में बनाया है, इजाफी। ठीक है, तो 1 से 2 यूनिट बनाने में इजाफी यूनिट क्या है? 1 से 2 यूनिट बनाने में इजाफी टोटल टाइम कितना लग रहा है? 60। 1 से 2 यूनिट बनाने में इजाफी एवरेज क्या आ रही है? 60। 2 से 4 यूनिट्स बनाने में इजाफी यूनिट्स कितने हैं? 2। 2 से 4 यूनिट्स बनाने में इजाफी टोटल टाइम कितना लग रहा है? 96। और 2 से 4 यूनिट्स बनाने में इजाफी एवरेज कितनी है? 48। सो अगर आपको ये टेबल समझ आता है, और राइट, अब मैं आपसे बेशक पूछ लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे टोटल टाइम कैसे निकाला और ये कैसे निकाला। तो अब अगर आपको नहीं समझ आया और किसी एक चीज को आपने समझना है, तो वो आप मुझे ज़रा टाइप करके बता दें, बिकॉज हम तकरीबन आज के लेसन के एंड में भी जा रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी एम्बिगुइटी के साथ आप जाएं, आप चीज़ों को क्लियर करके जाएं। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अभी मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेटली ये टॉपिक 1.5-2 घंटे ले जाता है कम्प्लीटली समझाने में। लर्निंग रेट जी, कौन डिफाइन करता है लर्निंग रेट? आपकी मैनेजमेंट डिफाइन करती है। देखें, मुझे बताएं, आप खाना कौन बनाता है घर में? तो भाई खाना बनाने वाला ही लर्निंग रेट के बारे में बेहतर बता सकता है ना। तो जो काम जो कर रहा होता है, सो बेसिकली थ्रू एक्सपीरियंस एंड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू जजमेंट वन कैन डिफाइन द लर्निंग रेट। और
अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिकली भी लर्निंग रेट को निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर आप लर्निंग रेट, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हरीश निकाल, लर्निंग रेट वेरिएबल होगा। तो अब ये दो बातें हैं, एक लर्निंग रेट गिवन होगा, एक बात है लर्निंग रेट गिवन होगा, एक बात है आपको बता दिया लर्निंग रेट और आपने आवर्स पे अप्लाई किया और अप्लाई करके टाइम निकाला, टाइम निकाल के कॉस्ट निकाल लिया। और दूसरा, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें लर्निंग रेट गिवन नहीं होगा। अच्छा, अब ये जिसने ये भी सवाल पूछा था कि लर्निंग रेट डिफाइन कौन करता है और लर्निंग रेट, तो हम लर्निंग रेट को बहरहाल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग रेट फिर कैसे कैलकुलेट होगा? लर्निंग रेट ऐसे कैलकुलेट होगा कि भाई पहला यूनिट कितने घंटे में बना, दूसरा यूनिट कितने घंटे में बना। तो हम डेटा ले लेंगे सारा का सारा लेबर का, कि लेबर ने कितने यूनिट्स कितने आवर्स में बनाए, और उस डेटे की बेस पे फिर फॉर्मूला अप्लाई करके लर्निंग रेट निकालेंगे। तो लर्निंग रेट आपका इस तरीके से बिल्कुल निकल सकता है, थ्रू डाटा भी लर्निंग रेट निकल सकता है। और जब मैं आपको एक्सपीरियंस की बात कर रहा था, तो एक्सपीरियंस का वन ऑफ द मतलब एक्सपीरियंस इज आल्सो डाटा। जब आप एक काम करते हैं, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, आपके पास डाटा आ जाता है, तो उस डाटे से आप जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो लर्निंग रेट कैन बी asked as a question। और अभी हमने आगे जाकर ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें लर्निंग रेट विल बी आस्क्ड। के बताएं जी। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये सवाल इस तरीके से दे दूं, ये सवाल अगर मैं आपको इस तरीके से दे दूं और आपसे लर्निंग रेट पूछ लूं, तो आपको बता देना चाहिए। यानी कि मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको इधर से यूनिट्स दिए, इधर से आवर्स दे दिए कि भाई एक यूनिट जब बना था तो टोटल इतना टाइम लगा था, 2 यूनिट जब बने थे तो टोटल इतना टाइम लगा था, 4 यूनिट जब बने थे तो टोटल इतना टाइम लगा था, 8 यूनिट जब बने थे टोटल इतना टाइम लगा था। अब आप क्या करोगे, आप एवरेज टाइम निकालोगे, कम्युलेटिव एवरेज। सो 80, 64, 51.2 आप ये निकालोगे। टोटल से एवरेज निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। जब आपके पास ये एवरेज आ जाती है, तो फिर आप इसके अंदर जरा देखो कि ये 100 से 80 पे कैसे आया होगा, टाइम्स 80%। और ये 80 से 64 पे कैसे आया होगा, टाइम्स 80%। और ये 64 से 51 पे कैसे आया होगा, टाइम्स 80%। तो इसका मतलब है आर क्या है, आर जो है वो 80% है। तो आर मैथमेटिकली एंड दिस वे आर कैलकुलेट किया जा सकता है। और आगे जाके हमने क्वेश्चंस देखने हैं। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी एप्लीकेशन है एक्चुअली, डेफिनेटली इट्स विल नॉट बी कवर्ड इन वन सिंगल क्लास। आज तो क्लास भी अभी जो जो टॉपिक वाली क्लास है वो आधे घंटे की हुई है। इसको तो समझाने के लिए 1 घंटा में अगली पूरी क्लास लगेगी थ्रू डिफरेंट क्वेश्चंस। तो उसमें हम देखेंगे कभी आर मिसिंग होगा, कभी टोटल टाइम निकलवा रहा होगा, कभी एवरेज टाइम निकलवा रहा होगा, फिर कॉस्टिंग इसकी हो जाएगी। तो इसकी बड़ी लंबी छोटी एप्लीकेशंस हैं एंड दैट विल गोना कवर इन कपल ऑफ मोर क्लासेस। ठीक है, सो आर कुड बी कैलकुलेटेड थ्रू द क्वेश्चन। अरसलान का क्वेश्चन है, काइंडली गाइड अस अबाउट दी प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस रिसोर्सेज, लिंक, इक्वेशन। मुझे अब बताएं, मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ। मैंने आपको कहा है कि हर चीज़ वहाँ पे गूगल क्लासरूम में पड़ी हुई है। अब आपको मज़ीद क्या चाहिए, आई डोंट नो। और पहली क्लास में आपको कितना कुछ चाहिए। जी अरसलान, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू माय स्टेटमेंट? जी अरसलान, मैंने आप लोगों को एक्सेस के लिए सिंपल ये कहा है कि आपने मुझे अपना जीमेल आईडी भेजना है, चाहे मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, चाहे मुझे व्हाट्सएप कर दें अपना जीमेल आईडी, या आप मुझे ईमेल कर दें अपना जीमेल आईडी। आई विल ऐड यू टू द गूगल क्लासरूम। वहाँ से आप ये रिसोर्सेज डाउनलोड कर लें एंड आई विल रेकमेंड कि एक दफ़ा डाउनलोड करके अपने पास रख लें। और फिर उसके बाद उन्हीं रिसोर्सेज में से कुछ रिसोर्सेज में ऐड करता रहूँगा। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, लाइक लर्निंग कर्व के 15-20 सवाल हैं, पास पेपर्स में से, ACCA में से, सीमा में से, ABC के 20-25 सवाल हैं। सो दैट विल बी शेयर्ड एज वी प्रोसीड। ऑब्वियसली आपने कोई सारा मटेरियल इकट्ठा करके भाग थोड़ी जाना है। यू आर विद मी, आई एम विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लासेस। तो अरसलान, आपने अगर मुझे मेल कर दिया है तो मैं अभी तो आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, सो थोड़ा सब्र कर लें।
that will be done inshallah after this class. So we're left with 4 minutes and I would like to spend these 4 minutes with you responding to your queries. So थोड़ा सा सब्र करें और मेरे साथ चलें, and definitely you're gonna enjoy this session and you will learn so many things. And you may ask your seniors as well if you are a bit concerned कि जी कैसे होगा और कैसे करेंगे और सर कैसे करवाएंगे. जी, any quick question or any other query or suggestion for the class? ग्रुप आपका बन गया है और ग्रुप में मुझे भी ऐड कर दिया गया है. अच्छा नहीं, अभी नहीं, सॉरी, ये कुछ और ग्रुप है. अभी नहीं. ओके, वेल मुझे हाँ ये ग्रुप बन गया है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर 2020, and I am now the admin of that group. So I will be posting the rest of the information in that group. तो आपसे राब्ता रहेगा ग्रुप के थ्रू भी. बड़ा जनरल सवाल पूछ लिया आहद ने कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग, बट आई गेस आई कैन रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन. 2 मिनट हैं, 1 मिनट में जवाब दूंगा. फ्यूचर उन लोगों के लिए होता है जो अपने आप को ज़माने के हिसाब से चेंज करते हैं. तो जो अकाउंटेंट्स अपने आप को रीसेंट एरा के हिसाब से शेप अप कर रहे हैं, दे हैव अ फ्यूचर. जब आप स्टक हो जाते हैं एक चीज़ के साथ तो आप अपनी जो रेलेवेंस है वो लॉस्ट कर देते हैं, और रेलेवेंस जब आप लॉस्ट कर देते हैं तो फिर चाहे अकाउंटिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे एचआर हो, व्हाटएवर, आपका फ्यूचर इतना नहीं होता. एंड दैट्स वेयर आई अर्ज यू टू लर्न न्यू स्किल्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू समथिंग न्यू. और आजकल तो डिजिटल और डिजिटाइजेशन और डिजिटल स्किल्स और क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, एवरीथिंग डिजिटल, यू नेम इट. और ये एक थ्रेट भी है कि अकाउंटिंग भी डिजिटल और कंप्यूटराइज होती जा रही है, बट स्टिल देयर इज अ ह्यूज स्कोप इफ यू learn new set of skills within accounting. Definitely you have scope. It's future is there. Shailin ji, ठीक है. So I'm done with today's class. I will see you tomorrow. We will continue this learning curve. We will continue this learning curve. और कल हमने इसको mathematically algebraic approach, formula सारा और इसकी applications और इसके quizzes और इसके MCQs cover करने. So tomorrow will be a major lesson, inshallah. उस वक्त तक जो भी query अगर आ रही हो ज़हन में WhatsApp कर दें. I will try to respond it and see you tomorrow. Allah Hafiz.